Okay, let's start. I believe now you know what is a data packet, why it is split it into different pieces. ये आपको समझ आ गया होगा. नाउ आज हम डिस्कस करते हैं सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन. डेटा ट्रांसमिशन, same thing. Data is transmitted from one computer to other device. I told you earlier in my last lecture, it can be a short distance data transmission. Short distance data transmission. For example, this is your printer, right? ये आपका पेज है. So, and long distance data transmission means when you send a data across the network, right? This is your internet के through when you send the data. This is called long distance data transmission. Clear? अब हम पढ़ते हैं serial and parallel data transmission. First you need to understand what one thing, uh, the factors which are involved in data transmission. The very first one is direction of the data. Direction of the data, right? इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि आपका डेटा वन वे जा रहा है या इट्स गोइंग on both sides. If it is going on the both sides, then at the same time or not. ये भी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट लेट मी नो यू द फैक्टर्स. नंबर टू इज methods of data transmissions. Methods mean जो डेटा आपका ट्रांसमिट होगा ईदर साइड, इफ इट्स अ सिंपल वन वे, टू वे और हाफ डुप्लेक्स, ये मैं भी बताता हूँ आपको. तो इसमें जो बिट्स आपकी ट्रांसमिट होगी वो कैसे होंगी? सीरियल वाइज होंगी या पैरेलल? ठीक हो गया. सो द डेटा विल बी ट्रांसमिटेड ईदर सीरियल और पैरेलल. द थर्ड फैक्टर is the synchronization of data. Synchronization of the data, which make sure, it means which make sure the data is received without error by the destination computer. Clear? दोबारा मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ. Data can be transmitted on short distance devices or long distance devices, or there are three factors which are involved in the data transmission. The very first one is direction of the data, the second one is methods of data transmission, the third one is synchronization. So direction of the data, what does it mean? Direction of the data, there are, sorry, इससे मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ. Transmission modes. Number one is simplex. Number two is half duplex, and number three is duplex or full duplex. Full duplex.
ट्रांसमिशन मोड्स आर द डायरेक्शन ऑफ द डेटा। बेटा गौर से सुनना है आपने, राइट। सिंप्लेक्स मीन वन वे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, इफ यू गेट अ हार्ड न्यूज पेपर एट योर होम, न्यूज पेपर और मैगजीन्स, केबल नेटवर्क अगर आपके घर में लगा हुआ है, केबल नेटवर्क, सो यू कैन वॉच द मैचेस, न्यूज एक्सेट्रा, either you like it or not, that is the simplex form of data transmission, only one way। इसकी एग्जांपल है, दैट्स योर कंप्यूटर, राइट। और बेटा ये आपका है फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, राइट। कीबोर्ड से वट एवर यू टाइप दैट इज डिस्प्लेड ऑन योर screen, so it won't come back, right? So that is a simplex data transmission. The second one is half duplex. Half duplex data transmission means both devices can transmit transmitted the data but not simultaneously। Simultaneously का मतलब क्या होता है? Simultaneously means at the same time, right? This is your computer A, this is your computer B। For example, अगर आप डेटा सेंड कर रहे हो तो at one time computer A can send the packets, computer B will wait for the completion of the job। इसकी बेटा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर कंप्यूटर और ये आपका डेटा जा रहा है, एंड दिस इज योर अगेन प्रिंटर। बेटा प्रिंटर देखें, let's suppose your printer is out of paper, there is no paper in your printer trays, right? Out of papers, right? So when you send a text, ये आपकी फाइल जा रही है, टेक्स्ट फाइल फॉर प्रिंटिंग, बट देर इज नो पेपर। ये आपकी फाइल यहाँ पे ट्रांसमिट होगी, व्हेन इट इज डन देन, तो फिर क्या होगा, प्रिंटर विल जनरेट एन इंटरप्ट और यहाँ पर ये दोबारा इसे कहेगा देर इज नो पेपर इन द पेपर ट्रे 1 2 3। सो एट द सेम टाइम ये नहीं होगा, राइट। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज, दैट इज, लेट मी से, वॉकी टॉकी, जीपीएस फोन्स, जीपीएस फोन मीन्स थोराया वगैरह, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव वॉकी टॉकी, ये एक वॉकी टॉकी है और ये दूसरा वॉकी टॉकी है, राइट। 1 2 3 ये लिखे हुए हैं। सो व्हाट हैपन्स बेटा, सो अगर कोई वॉकी टॉकी यूज करता है, राइट, ही सेज कैन आई टॉक टू उमेर ओवर। व्हाट डज इट मीन ओवर? ओवर मीन दैट आई एम डन, अगर अब आप बताएं। सो इट्स, फॉर एग्जाम्पल इट्स अली, अली सेज yes, Umair is with us. Over. So if they start talking at the same time, so it won't be possible to transmit the data correctly। ठीक है, क्योंकि एक ही चैनल ये यूज कर रहे होते हैं। सो नॉट एट द सेम टाइम, हाफ डुप्लेक्स मीन द डेटा कैन नॉट बी शेयर्ड साइमल्टेनियसली, एट द सेम टाइम वो शेयर नहीं हो सकता। क्लियर? ओके। The third direction of the data is duplex or full duplex। Duplex, full duplex। बेटा it means के the data can be transmitted
This is your internet, and these are the devices across the network internet. The data can be shared at the same time. For example, internet is one of the example. At the same time आप डाउनलोड भी कर रहे होते हो, डाउनलोड अपलोड डिफरेंट टैब्स भी ओपन किए होते हैं, चैट भी कर रहे होते हो, एक्सेट्रा, राइट। और दूसरी एग्जांपल ये है कि व्हेन यू मेक अ कॉल टू योर फ्रेंड ऑन द सेल फोन, देन यू कैन टॉक simultaneously at the same time, right? So this is the direction of the data or transmission modes. मैं भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. ट्रांसमिशन मोड्स आर द डायरेक्शन ऑफ द डेटा. सिंपलेक्स मीन वन वे डेटा ट्रांसमिशन, right? And I give you a couple of examples for that. Newspaper, magazines, cable network. Half duplex means the data can be shared or transmitted both ways but not simultaneously, right? The examples were when you type anything from your keyboard to monitor mean system, माउस से आप कोई चीज़ काम करते हैं, ठीक है, सो दैट्स हाफ डुप्लेक्स. वॉकी टॉकी, ये हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल हैं. इट कैन नॉट शेयर द डेटा एट द सेम टाइम. Duplex means the data can be shared or transmitted at the same time by both parties simultaneously at the same time. Is that clear? So this was the very first factor in data transmission. अब दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. सेकंड फैक्टर, मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. Data can be transmitted serial wise or parallel. Clear? Serial mean bit by bit, one by one. For example, serial में that's your computer and this is computer B. से फॉर एग्जांपल ये आपका डेटा जा रहा है 1001 बिट बाय बिट, राइट? इसे कहते हैं हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग वन वायर और वन चैनल. सीरियल में बेटा द डेटा इज ट्रांसमिटेड बिट बाय बिट यूजिंग सिंगल वायर और चैनल, राइट? पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में the data can be transmitted multiple bits across multiple wires, right? Is that clear?
Parallel and serial data transmission. Multiple bits can be transmitted. Multiple bits can be transmitted using multiple channel or wires. Clear? बेटा यू आपके पास 2 मिनट हैं, जल्दी से इसे आप क्या करें, थोड़ा सा स्किमिंग कर लें ताकि आगे मूव करें फिर हम. यू हैव ओनली 2 मिनट्स. हरी अप. स्टार्ट नाउ. ओके, जल्दी से फॉर्म देखें. डायरेक्शन ऑफ द डेटा. Methods of data transmission: serial and parallel. Done. Okay, now let me tell you. बेटा अब रियल टाइम पे अब ये कैसे काम करते हैं. फॉर एग्जांपल इसके थोड़े से प्लस माइनस मैं आपको बताता हूँ. सीरियल डेटा ट्रांसमिशन. सीरियल डेटा ट्रांसमिशन दैट इज रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन. राइट. स्टेबल. द कनेक्शन इज स्टेबल बिकॉज आपका बिट बाय बिट डेटा जाता है, सो देर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ करप्शन ऑफ डेटा. द कॉस्ट सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव और स्पीड भी इसमें काफ़ी स्टेबल मिलती है, अच्छी मिल जाती है स्पीड आपको. राइट. और क्या हो सकता है बेटा, आजकल जो आपके यूएसबीज वगैरह हैं, यूएसबीज ऑलमोस्ट एवरी न्यू डिवाइस लाइक प्रिंटर्स, आपके स्कैनर्स, इवन आपके कैमराज वगैरह हो गए हैं. सो ऑल दीज डिवाइसेस आर यूजिंग यूएसबी. यूएसबी मीन यूनिवर्सल सीरियल. सीरियल मीन उस पर डेटा जो आपका ट्रांसमिट होता है वो बिट बाय बिट होता है. राइट. यूएसबीज वगैरह में आपका यूज़ होता है. राइट. अब आपके प्रिंटर स्कैनर वगैरह तमाम यूएसबीज आ गए हैं. राइट. ओके, पैरेलल में बेटा बिकॉज मल्टीपल वायर्स इसमें यूज़ होती हैं. मल्टीपल वायर्स, बिकॉज ऑफ मल्टीपल वायर्स इसकी डेटा स्पीड ज़्यादा होती है व्हेन यू कंपेयर इट विद द सीरियल. बट in the long distance data transmission, long distance में that is a disadvantage. Long distance में if we use parallel data transmission, that there are chances of करप्शन ऑफ द डेटा. वाई बेटा, उसमें बिट बाय बिट मल्टीपल वायर्स यूज होती हैं, सो देयर आर चांसेस कि सम ऑफ द डेटा कैन बी
अप्रोच करेक्टली, और बाकी जो है कुछ उसमें से डेटा जो है वो लॉस्ट भी हो सकता है, राइट? सो इट हैज़ आल्सो अ लिमिटेशन। लिमिटेशन मीन, फॉर एग्जांपल, अगर आप 20 मीटर से ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट करते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड पैरेलल, सो देयर इज़ अ चांस ऑफ लूजिंग द डेटा। सो करप्ट हो जाएगा ऑफ कोर्स। सो अच्छा, ये यूज़ कहाँ होता है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन? बेटा इनसाइड द कंप्यूटर। इनसाइड द कंप्यूटर आपके यू हैव द रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट? यू हैव द प्रोसेसर। तो वहाँ पे जितनी भी डेटा ट्रांसमिशन होती है आपकी, वो आपकी सीपीयू पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन मोड्स में होती है, राइट? फॉर एग्जांपल लेट मी से, बेटा अगर लेट मी से कि अगर कंप्यूटर में इनसाइड द कंप्यूटर अगर आपका डेटा ट्रांसमिट होता है सीरियल वाइज, मींस के बिट बाय बिट, तो उसका इफेक्ट क्या होना था? गुड, ठीक है, बिल्कुल। डेटा स्पीड जो है आपकी इनसाइड द कंप्यूटर, वो क्या हो जाती है आपकी? वो कंप्रोमाइज्ड हो जाती है, राइट? तो आपकी वो स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जानी चाहिए। सो दैट्स वाई पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन इसमें यूज होती है, सो दैट द मल्टीपल डेटा कैन बी फेच्ड, डिकोडेड एंड एग्जीक्यूट। मीन्स के वो इस स्पीड पे भी डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। इज दैट क्लियर बेटा? एनी क्वेश्चन? जल्दी से आप ये देखें। ओके, देर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। जल्दी से बेटा क्वेश्चन देखें एंड टेल मी कि ये आपने क्या करना है, आपने इसे मैच करना है। सो थ्री एप्लीकेशंस ऑफ डेटा ट्रांसमिशंस आर गिवन बिलो, ड्रा अ लाइन टू लिंक ईच एप्लीकेशन टू द मोस्ट appropriate method. द फर्स्ट पॉइंट इज, ये फर्स्ट पॉइंट है, ट्रांसमिटिंग साउंड डेटा बिटवीन ए माइक्रोफोन एंड द कंप्यूटर। ओके बेटा, ये सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, डुप्लेक्स होगा? you need to understand the question. I gave you an example. ओके, यस दैट्स राइट। चलें नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फिर हम जरा इसे करते हैं वन बाय वन। ट्रांसमिटिंग साउंड डेटा बिटवीन टू वीडियो फोन यूजर्स एट वन टाइम। टू वीडियो फोन यूजर्स साउंड ट्रांसमिट हो रही है उनकी। ट्रांसमिटिंग साउंड बिटवीन टू वॉकी टॉकीज। बेटा यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कीबोर्ड और माउस टू कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, सो दैट वुड बी सिंप्लेक्स। ठीक हो गया? और ये आपका वॉकी टॉकी जो हो गया है, दैट इज योर हाफ डुप्लेक्स। और एट द सेम टाइम कपल ऑफ यूजर दे कैन टॉक, ये आपका हो गया है डुप्लेक्स। इज दैट क्लियर बेटा? एनी क्वेश्चन? You can have a look and you can raise questions.
बेटा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी वन बाय वन मैंने आपको बता दिए हैं, राइट। उनके प्लस पॉइंट्स भी बता दिए हैं, स्टेबल, इंस्टेबल, और उसकी लिमिटेशंस, पैरेलल की 20 मीटर्स, और सीरियल में डेटा कंपैरेटिवली पैरेलल से स्पीड उसकी कम होती है, बिकॉज पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में द डेटा इज transmitted in multiple voids using multiple channels. But the disadvantage is in the long distance आपका डेटा जो होगा पैरेलल में आपका वो करप्ट होने के चांसेस होते हैं, राइट। और लॉन्ग टाइम अगो व्हेन देयर वाज नो यूएसबी पोर्ट, बेटा उस वक्त जो है प्रिंटर की पोर्ट्स होती थी पैरेलल पोर्ट्स, राइट, जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर से प्रिंटर में अटैच होती थी। सो वो तो अब ऑब्सलीट हो गई हैं। अब तमाम आपके जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं वो सीरियल या सी टाइप में आने लगी हैं, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। अब थोड़ा सम अप कर दूं मैं इसको। ओके, सो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, यू नो के डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। सो शॉर्ट डिस्टेंस में आई गिव एन एग्जांपल, कंप्यूटर से प्रिंटर आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं, ओके, वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यूजिंग लैन, लैन मीन लोकल एरिया नेटवर्क इन ऑफिस। लॉन्ग डिस्टेंस जो डेटा ट्रांसमिशन होती है दैट इन्वॉल्व्स ग्लोबल नेटवर्क और इंटरनेट, ठीक हो गया है। और इसमें डायरेक्शन ऑफ द डेटा, आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ द थ्री फैक्टर्स। अच्छा, ये आपको यू नीड टू रेज दिस क्वेश्चन के what exactly or who exactly take care of all these things, the direction of the data, the method of data transmission or synchronization। बेटा ये आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो होता है इनसाइड द कंप्यूटर, एल्गोरिदम काइंड ऑफ कह सकते हैं आप, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच चेक्स ऑल दीज थिंग्स, the direction of the data, the methods of data transmission, right? Direction of data में I told you there are three transmission mode or direction of the data. The very first one is the simplex, and the second one is half duplex, and the third one is full duplex, right? अच्छा, simplex में the data is transmitted only one way। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, केबल नेटवर्क। आप जो टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में, माउस से क्लिक करते हैं, तो दैट गोज ओनली वन वे इन योर कंप्यूटर, राइट। हाफ डुप्लेक्स में आपके पास द डेटा कैन बी शेयर्ड, ट्रांसमिटेड बोथ कंप्यूटर्स बट नॉट साइमल्टेनियसली, ओके। और वॉकी टॉकी, कंप्यूटर टू प्रिंटर और वायरलेस, इस तरह की एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी। फुल डुप्लेक्स में नाउ इट्स full duplex means at the same time you can receive the data, you can transmit the data, right? The example was the internet and the phone. अब methods of data transmission में the data can be transmitted through serial data transmission or parallel। सीरियल में आपका बिट बाय बिट डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, बिट बाय बिट यूजिंग सिंगल वायर और चैनल, राइट। whereas in parallel data transmission में multiple bits are transmitted from one device to another using multiple wires or multiple channels। Talking about short distance data transmission, parallel is recommended, but in the long distance data transmission, serial is recommended। सीरियल जो होता है that there is very less chances of data skewing mean the data corruption, but in parallel data transmission there is a limit of 20 meter, if I'm not wrong, yes 20 मीटर ही होगी। तो अगर वो